Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. Hello. आज का हमारा topic is in continuation with the previous topic. Supplements. Supplements. Actually, this is now going to be A a series. mini series. पहले एक था, फिर आई थिंक हमने लास्ट एपिसोड में कहा भी था कि तो दो बनानी पड़ेंगी, बट अब दो नहीं. This will actually become a mini series Yeah. of, I don't know, 4-5 episodes की बनेंगी. तो आज episode number 2 है For this mini series. for mini series. However, सना हमारी ये episode 15 है Yeah. जो कि अभी एयर होगी. आप जब लोग देखेंगे तो it will be number 15, which is a huge milestone for us, है ना? Yeah, it is. I mean, I still remember when it was still a concept और हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे. बहुत ऐसे बातें हुई हैं. Yeah. और पॉडकास्ट का आइडिया तो आई थिंक मुझे तो बहुत सालों से था. And I've actually पहले जो दिमाग में था wanted to do it with one of my best friends who's also a nutritional therapist, निदा. तो निदा और मैंने बहुत सालों से था. फिर कभी बच्चे छोटे थे, फिर ये था, और बच्चे ही छोटे थे मेनली, और लाइफ में कुछ टाइम नहीं था. तो देन इतना प्रोलॉन्ग हुआ. फिर दानियाल के जहन में आया कि हम पॉडकास्ट क्यों नहीं. मैंने कहा मैं तो अरसे से कर रही हूँ, बट हमारा निदा और मेरा अब नहीं हो पा रहा, ऐसे लाइफ के हम फेज में. So then we came up with this idea. Yeah. And उसमें भी बहुत हमने टाइम डिस्कशन हुई है. Yeah. But I think maybe किसी eventually किसी episode में हम निदा को जरूर बुलाएंगे. Yes, we have to. Because she's also a very accomplished nutritional therapist. Yeah. And she also specializes in gut health, right? Yes, exactly. So I think it will be very beneficial for our viewers and listeners कि अगर हम उन्हें भी बुलाएं और बातचीत करें. And I think that would be a very nice episode. I think कोई और milestone episode जो होगी हमारी, I don't know which would that be. That could be 20. It could be 20th, yeah, and we will have 5 more weeks. 5 more. So Nida can prepare herself. So inshallah, I hope we keep on with this motivation and the strength to bring this content every week. और आप लोगों की दुआएं और हम लोगों की कोशिश रहेगी. दुआएं के साथ साथ आप जो हैं वो चीज़ों को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में. It's because that's how this works. Exactly. Because we really put in a lot of effort. हमारी बड़ा ज़ाहिर है content बनाना, content creation में generally इतना time लगता है, and to come up with everything. But we also love doing it. बहुत मज़ा आता है जब भी अभी तक तो मज़ा आ रहा है. हाँ, ये आता रहेगा. I think the more you do something, वो आपको it becomes second nature then. But then it's not very forced. It's not something कि जो आप बहुत सोच के करते हैं. It just starts coming. I think जब forced हो जाएगा ना तो शायद आप लोगों को खुद लग जाएगा कि force हो रहा है. Anyway, but it's a great feeling to come to be at this point, जिसको हम कह सके 15th episode हमारी बाहर आ गई है. So it's very nice. 115th, 215th, 515th वो भी बड़ी अच्छी होंगी. आराम से कहाँ निकल गए. तो चलें, let's come back to our topic. तो supplements की continuation है ये. पहली एपिसोड में सप्लीमेंट्स की पहली एपिसोड में हमने आप लोगों को कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स के बारे में बताया था, और अब हम थोड़ा और बताएंगे. एक लिस्ट है हमारे पास आज की एपिसोड के लिए, लेकिन उससे पहले सना हम थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाह रहे हैं. So वो शायद पहले भी मैंने कहा था, and I'm going to say that again and maybe in each episode, that this टॉपिक इन पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्स के नाम आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल है. सो दिस इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस एंड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. अव्वल तो ये है कि आई एम अ न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट, बट आई एम नॉट योर न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट. आई डू नॉट नो यू पर्सनली, आपके इश्यूज़ को पर्सनली. सो एनीथिंग दैट इज़ बीइंग सेड इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस. If you have your issues and if you are confused, you have to go to a professional, or you can DM me and ask me, or set an appointment with me. तो वो हो सकता है. बाकी ये है कि हम सिर्फ इसको educational purposes के लिए ये कर रहे हैं. And the best way to know अगर आपकी कोई deficiencies, to get yourself tested. Exactly. Right. उसके बगैर कोई भी supplement शुरू करना is not advisable. And if you haven't watched the previous episode, it's very important, क्योंकि उसमें सिर्फ list
नहीं, ये कि हमने लिस्ट की शुरुआत सिर्फ नहीं की थी, वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि किस टाइप के सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है या उनकी कब ज़रूरत होती है, उसकी क्वालिटी के बारे में, और कहाँ से जो है आपको किस किस्म के ब्रांड्स कैसे आपको देखने चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ So थिंग्स। please go and check that episode. और हम अब अपनी लिस्ट पे चलते हैं. Yeah, absolutely. And we have sort of divided this क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे नाम थे या supplements थे या हम कह सकते हैं minerals and vitamins and herbs या botanicals that we really wanted to share and talk about. But उसमें फिर obviously वो बहुत ज़्यादा list बड़ी होती गई, so we have divided and kept a couple of them in each episode. Right. तो आज हम start करेंगे. सबसे पहले we're going to start with ashwagandha. Yes. And Daniel is going to tell you all about it. Right. So ashwagandha आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है. Maybe mainstream हुआ था maybe 10 years ago. Yeah. But it's a plant that is grown in India, Middle East or Africa में, and it has been used in for medicinal purposes for thousands of years. Right. और यूज हुआ है ट्रेडिशनली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अंदर. एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं वो रियली हैं स्ट्रेस रिलीफ के, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके कोर्टिसोल लेवल्स को बेसिकली कम करने के लिए, एंड इट रियली हेल्प्स विद एथलेटिक परफॉर्मेंस. नाउ कोर्टिसोल जब आपकी कम होती है, आपकी एंजाइटी बेहतर होती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है, तो उससे आपकी हार्मोनल फंक्शंस भी बेटर होते हैं. तो इनडायरेक्टली इसका लिंक होता है टेस्टोस्टेरोन के साथ. सारे आपके जो रिप्रोडक्टिव हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे, बिकॉज इफ यू गो बैक वी कैन इजीली कनेक्ट दिस के जब क्रॉनिक कोर्टिसोल हाई रहेगा आपका, क्रॉनिक स्ट्रेस होगा और कोर्टिसोल कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा, तो फिर आपकी बॉडी इज इन सर्वाइवल मोड एंड सर्वाइवल ट्रम्प्स एवरीथिंग. बॉडी पहले उस पर काम करती है and it does not work towards your digestion or your reproduction and all of those things. तो ये हमने बहुत बातें करी अपनी previous episodes में इन चीज़ों के बारे में, तो it's important to go back and check that. But in any case, ashwagandha कभी कभार advertise होती है as a testosterone booster, या it naturally increases testosterone. So it doesn't really do that. What it does is it helps in reducing the stress, reducing anxiety, reducing cortisol levels. It helps with sleep and athletic performance. Right. So all in all of these things creates an environment for a healthy testosterone production. Bilkul. So that is why isko bahut usse correlate kiya jata hai. Yeah. So in general, it's a good one to look into. Yes. And again, I take it. I take it. मैं भी खाती हूँ. And I think generally because of the pace of life and the constant stress, I think it's a good idea to look into this and see if it works for you. Yeah. Next क्या है हमारे पास? Next है हमारे पास berberine. Berberine. And berberine, it's also something that I take personally. तो मुझे उसका एक होता है कि आपको professional experience होता है, एक personal experience भी होता है किसी चीज़ों का. So I take berberine. Berberine भी एक substance है, different plant की varieties में से निकलता है. एंड सबसे ज़्यादा उसके जो यूजेज है आजकल, वो आजकल क्या, इट्स बिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, डायबिटीज के लिए और एनीथिंग रिलेटेड, सो प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर रेगुलेशन, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए इट्स अ गुड आइडिया टू लुक इनटू दैट. तो आप जो अपनी चीज़ें करते हैं, अगर आपको ये सारे कोई भी कंडीशंस हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप कोई ना कोई चीज़ें लेते होंगे, कोई मेटफॉर्मिन लेता है, कोई चीज़ लेता है, तो वो अपनी जगह है, लेकिन यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप उसके अंदर देख सकते हैं कि ये भी सूटेबल है लेने के लिए, तो फिर यू कैन रियली लुक इनटू दैट. इट्स क्वाइट हेल्पफुल. और इफ़ यू हैव अ PCOS, ये मैं पुराना नाम ले रही हूँ, द न्यू नेम इज़ PMOS. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टू. मैंने एक शायद रील भी शेयर की थी कि उसका नाम फाइनली बदल गया है. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. तो उसमें भी berberine इज़ रियली गुड एंड रियली हेल्पफुल, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज के PCOS, PMOS,
जो है आपका is linked to insulin resistance. So Exactly. you know it's the same thing. So if it's something that you have like diabetes, insulin resistance या कोई ऐसी चीज, so it might be worth Looking into that. Looking into that. Yeah, that's right. Next हमारी लिस्ट में है जिंक. Yeah. Zinc is a very important compound जो कि naturally हमारे खानों में होता है. हमारे सी फूड में होता है, स्पेशली ऑयस्टर्स में बहुत ज्यादा होता है. या एग्जैक्टली रेड मीट में होता है, रेड मीट में, राइट, पोल्ट्री में होता है. रेड मीट को इतना डिमोनाइज नहीं करना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. we have to look into that. उसमें बहुत जिंक होता है. तो जिंक के जो फायदे हैं, इट सपोर्ट्स इन इम्यून फंक्शन, हीलिंग ऑफ वुंड्स. It also helps in protein synthesis, DNA synthesis. DNA. Can you imagine? Can you imagine वो कितनी important चीज है? Yeah. And healthy growth during pregnancy, infancy or childhood years. Basically सारे phases of life में जहाँ growth है, जिंक की importance बहुत आती है. अच्छा, जिंक भी एक और कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा कभी कभार हेल्थ एंड वो फिटनेस के अंदर एडवर्टाइज होता है एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर. राइट, सो सॉरी, जिंक इज नॉट अ कंपाउंड, जिंक इज अ मिनरल. तो जिंक जैसे मैंने बताया कि प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट फंक्शन इनसाइड द बॉडी, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी कि इट्स समटाइम्स एडवर्टाइज्ड as a testosterone booster. Again, it helps in overall functioning of the body, जिसकी वजह से it can help into the production of testosterone and other hormones, because सारे hormones आपके, remember जो हमारी हमारी पिछली एपिसोड्स के अंदर हमने हार्मोन हेल्थ के बारे में बात करी. तो जब हार्मनी में होती है बॉडी और सब चीजें चल रही होती हैं, तो everything works properly, and that is why it also can help in testosterone or fitness के अंदर. जिंक उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, स्लीप के लिए भी, राइट. और हमने एक चीज मिस कर दी सना, पंपकिन सीड्स के अंदर भी जिंक होता है. पंपकिन सीड्स और आपके बीन्स, लेग्यूम्स, इन सब चीजों के अंदर भी है. बट अगेन बायो अवेलेबिलिटी आपकी जो है वो ज़्यादा उसमें से आएगी मीट एंड सी फूड के सोर्सेज में से. दे आर मोर बायो अवेलेबल फॉर योर बॉडी, बट नेवरदलेस pumpkin seeds and beans and all of these are great, really good. Yes, क्योंकि वो चीज़ें again sorry you were about to say something, दोनों सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं. as we know कि आपके गट को आप देखते रहे, साथ साथ उसकी सेवा करते रहे, वो ठीक रहेगा तो फिर साथ में ये चीजों की एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत बेटर हो जाएगी. राइट. तो मैं बस ये लास्ट चीज जिंक के बारे में कहना चाह रहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ जिंक जो मिनरल हमारे खानों के अंदर है, तो दैट इज द फर्स्ट प्लेस टू लुक फॉर इट. एंड ऑफ कोर्स जब आप अगर टेस्ट कराएं और डिफिशिएंसी आए तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ जरूर काम करके यू कैन फाइंड आउट अ रियली गुड प्योर जिंक सप्लीमेंट जो कि आप शुरू कर सकते हैं. हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट पे इनोसिटॉल. तो सना, वो क्या होती है? सॉरी वो इसलिए क्योंकि हम इतने ब्लूपर्स हमने 2 मिनट पहले किए हैं ना, कोई मैं उनकी जगह बोल रही हूँ, वो मेरी जगह बोल रहे हैं. एनीवे, तो इनोसिटॉल स्पेशली इन अ पर्टिकुलर रेशियो of 40:1 of myo-inositol to D-chiro-inositol, ये particular ratio है, जो कि सबसे अच्छा है. That's how you should take your inositol, and when you take it you should look for this in your supplement. And उसकी इनोसिटॉल के बड़े बेनिफिट्स हैं, बट आई फील कि ये कुछ सालों से सिर्फ मार्केट हो रहा है फॉर PCOS या PMOS, एंड इट्स ग्रेट फॉर इट क्योंकि आपके हार्मोनल रेगुलेशन के लिए, आपके ये इंसुलिन की सिग्नलिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड टू PCOS, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इनोसिटॉल की जो है वो मार्केट भी होता है, एंड पीपल यूज़ इट. आई यूज़ इट बिकॉज ऑफ माई PCOS,
and it works great and it's really beneficial. लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं इसकी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन के लिए भी आपकी होती है. That is very interesting. हमें ऐसा ये जहन में हम कनेक्ट नहीं करते कि इनोसिटॉल का ये भी काम हो फायदा सकता है. Yes. Exactly. तो लोग जिनको एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, राइट, तो हम दोनों के लिए एक पीसीओएस का प्रॉब्लम, एक को ये प्रॉब्लम, दोनों इनोसिटॉल जो है ना तो एक दफा खरीदनी पड़ेगी. वो नहीं होता थोक के हिसाब से आ गया. दोनों एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे 2 लोग कर रहे हैं. इनफैक्ट मैंने अभी तक यूज नहीं करी है. हमारी ये रिसर्च के दौरान ही ये हम लोगों ने देखा है. एंड दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड आई विल ट्राई इट एंड सी हाउ इट बिकॉज मुझे मैं तो लेती रही हूँ बट आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द पीसीओएस पार्ट. और मैंने खुद भी इतना इस बात पे गौर नहीं किया कि इफ इट वर्क्स फॉर एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स या क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए एंड वर्क्स टू बेटर योर एचपीए एक्सिस, तो फिर दिस शुड बी यूज्ड फॉर दैट, है ना? Absolutely. एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि मेरे अपने भाई को और मेरे 2-3 कजन्स को, क्योंकि आई फाउंड आउट कि इनोसिटॉल वर्क्स ग्रेट फॉर पीपल विद ओसीडी. वाओ. सो आई थिंक मैं तो अपने साथ खानदान अभी से लेने लगो. हाँ, उसको, उस्मान को, Yes. ये दोनों. So let's call them out on इन दोनों का मसला नहीं है, इनको आई कैन कॉल देम आउट. सुनेंगे ही नहीं अव्वल तो हमारी एपिसोड. एक्चुअली हाँ, वो देख ही नहीं रहा. बट द थिंग इज कि इन लोगों की और ओसीडी जिसको है प्रॉपर तरीके वाली, you should know because there have been times in our not childhood but हम जब teenagers थे या उसके बाद भी, इन लोगों को एक डोर लॉक करना, that would be a challenge, I tell you. आजकल बड़ी रील्स आई हुई हैं इंस्टाग्राम पे जिसके अंदर वो ओसीडी के जिनको है वो उन्होंने ही खुद बनाई है कि वो बार-बार चूल्हे को चेक कर रहे हैं, दरवाजे को चेक कर रहे हैं. हाँ, I mean it is funny लेकिन it is a real thing as well. नहीं, और वो चेक कर रहे हैं और एंड में क्या हुआ, खोल के आ गया और आग लग गई. I mean, it's not funny at all, but I know because मैं बड़ी closely देख चुकी हूँ कि क्या होता है. फिर वो इतना अच्छा साथ इतना करता था ना डोर निकलते हुए घर का, तो अम्मी अब्बू कहते थे ये तो लॉक है लेकिन वो टूट जाएगा, वो हैंडल बाहर आ जाएगा और उसकी वजह से चोर अंदर आएंगे. यही होगा, है ना? Anyway, moving on. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है I have creatine. And now very excited to talk I'm about very excited to talk about creatine because I think ये इतना underrated supplement है in our community, South East Asian community. I guess मर्दों को तो बहुत पता है जो फिटनेस से ताल्लुक रखते हैं वो लेते हैं creatine बहुत, लेकिन इसके फायदे औरतों में भी बहुत हैं. लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ क्रिएटिन के बारे में बताना चाह रहा था कि it's a gold standard supplement जो फिटनेस इंडस्ट्री में कहा जाता है. It's the most studied, right? It's the most researched and it's the most safest as well. So creatine क्या है? It is naturally produced by the body and it's stored primarily in your muscle cells. So it helps in regenerate ATP, which is the body's immediate energy source, right? So मैं जिस लिए लेता हूँ, मैं अपनी रिकवरी के लिए लेता हूँ, मसल ग्रोथ के लिए लेता हूँ, और मैं यूजुअली लेता हूँ ये अपने जिम वर्कआउट के बाद. और रिसर्च ये भी शो करती है कि इट हैज़ रियली गुड कॉग्निटिव बेनिफिट्स. इट हेल्प्स विद ब्रेन फॉग, और औरतों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है. इट ऑल क्यों तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं मुझे वो ख्याल आ रहा है कि दानियल को पहली दफा शायद पता चल रहा है एक बायोलॉजी का टीचर जो है ना वो किस तरीके से आपने कभी ये किया नहीं होगा ना. सो दिस इज क्या नहीं किया नहीं मतलब इस तरह इतनी साइंसी चीजों को मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत बोल रहा था. नहीं you're right but I just मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आई क्योंकि मैं तो used to हूँ, क्योंकि मैंने इतना all my life I've taught बायोलॉजी पढ़ाई है, केमिस्ट्री पढ़ाई है, तो वो दानियाल को सुनते हुए ना एकदम हंसी आ गई. बड़ा वो तरीके से लेक्चर देना होता है ना, ये है ना, but you're doing great. चलो let's keep going on. So research also suggests that it has potential benefits of muscle preservation.
Oh, that's very, very right? interesting. So it is Yeah. really interesting because ये एजिंग के प्रोसेस के अंदर Oh, जो yeah. हमारे बुजुर्ग हैं, जो हम भी पहुंच रहे हैं उसके अंदर, तो क्रिएटिन हेल्प्स विद दैट एज वेल. पता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मसल प्रेजर्वेशन. मसल प्रेजर्वेशन, क्योंकि ईच ईयर जब आप आई थिंक आफ्टर 40 ईच ईयर यू लूज अ लिटिल बिट ऑफ मसल. आफ्टर 30 even before, right? तो and muscle की इतने ज़्यादा benefits हैं. It also is linked with the prevention of Parkinson's disease, right? And dementia. इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है. तो creatine helps with muscle preservation, right? औरतों में it may help in prevent muscle loss during menopause, जो कि बहुत important है. And like I said, इसके cognitive benefits बहुत हैं, and brain fog के लिए, and इसकी because it is studied so much in the fitness industry, it is the safest, and और अरसे से लोग ले रहे हैं इसको. Right. Usually इसकी जो डोजेज होती है, आप कभी अगर खरीदेंगे तो it's creatine monohydrate, and that's the only generic name जो कि जिससे मिलता है वो, and it's always between 3 grams to 5 grams. Right. और इसकी डोजेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है अगर आप ब्रेन हेल्थ के लिए ले रहे हैं या आप muscle preservation या muscle building के लिए. But usually 3 to 5 grams per day is a very healthy dose to take. ठीक है जी. So next, approved हो गया. Yes, it is. So this shows कि अगर आप वो हो ना, invested हो किसी चीज में, तो you can. But maybe एक और चीज मैं ऐड कर दूं क्रिएटिन के बारे में, कि कुछ लोग और वो मे बी औरतों के लिए होगा, वो समझते हैं कि इससे ब्लोटिंग होती है. Because क्रिएटिन करती क्या है कि it takes all the water in your body and it sends it to your muscle cells. तो औरतों को ये फीलिंग आ सकती है कि आप bloated हो रहे हैं, but you're not being bloated, right? So this is a misconception. Okay. So next up is aloe vera, और इसका नाम किसने नहीं सुना, ये हम सबको पता है. And और ये उगता भी बहुत है, बहुत लोगों के घरों में लगा हुआ है, हमारे घर में भी लगा हुआ है, क्योंकि वो जरा वो हॉट ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर होता है. कैक्टस लाइक एक प्लांट है और सबके पास है, बल्कि ये एक वाहिद चीज है शायद सप्लीमेंट लिस्ट के अंदर जो ऑलरेडी आपके घरों में और लोग ले रहे होते हैं स्किन के लिए, स्पेशली स्किन के लिए मतलब लगा तो रहे हैं सब. एक जमाने में ड्रिंक्स में डाल रहे थे. नो तो कोकोनट वाटर के साथ टॉपिकली भी है और ओरली भी फिर है. सो टॉपिकली आप उसको ऑब्वियसली करते हैं फॉर स्किन अच्छी हो रही है और उसको खूबसूरत और ग्लोई और ये सब करने के लिए. आप क्या त्वचा मेरी ग्लोइंग त्वचा का राज कि ग्लोइंग, ये भी एक बहुत लफ्ज इस्तेमाल दानियाल को करना होता है. वो एक ऐड आता था जी टीवी पे. हाँ, तो वो उसके लिए. एंड देन दूसरे किस्म की चीजों के लिए भी, एक्ने या सोराइसिस या बर्न्स, कुछ इस किस्म की चीजें हैं, तो यू कैन यूज सनबर्न जब आप होते हैं ना, उसके लिए भी एलोवेरा इज वेरी, और उसका बड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है. तो इट्स रियली गुड, और ओरली भी ली जाती है फॉर थिंग्स लाइक डायबिटीज एंड IBD, इन चीजों के लिए भी. एंड people also take it for weight loss. But then again, it's not a magic solution. अब ये नहीं सोचें और या पता चला एलोवेरा जो है वो भर भर के उसको खाए जा रहे हैं कि क्या उससे क्या हो जाएगा. So, but it is there, and I think nevertheless we should all try it out, at least लगाने के लिए. क्या है, स्किन ही अच्छी हो जाएगी ना साथ. और it has no taste, तो खाने के लिए भी it's not a big deal. बट ये सारी चीज़ें ना जो आपके herbs और botanicals भी होते हैं, along with your obviously minerals and vitamins जो हैं, ये इनकी छोटी, हर वक्त इनका ना छोटी डोजेज भी होती है, और ये छोटा जो है अमाउंट, लिटिल goes a long way वाली बात है. तो ये नहीं है कि अब उसके बहुत बड़ी बड़ी मिकदार में लेना स्टार्ट करती है. कभी-कभी इसको माइक्रोडोजिंग भी कहते हैं. ओके, तो चूंकि ये हमें जनरली बहुत पता है, हम सिर्फ इसके बारे में जिक्र करना चाह रहे थे. वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन. नाउ प्रोटीन जो है दैट इज हमारी खाने पीने में होता है, लेकिन
जिस किस्म की प्रोटीन की मैं यहाँ बात करना चाह रहा था, दैट वाज अ प्रोटीन सप्लीमेंट दैट यू माइट टेक. नाउ आजकल बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, कोलेजन के अंदर आते हैं, वीगन प्रोटीन्स होती हैं, राइस प्रोटीन होती है, आई मीन देयर इज प्लेंटी. मैं बात करूंगा थोड़ा सा वे प्रोटीन के बारे में. दैट इज द मोस्ट कॉमन वन दैट पीपल टेक फॉर फिटनेस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, या एज ए सप्लीमेंट टू फूड. वे प्रोटीन किससे बनता है? फ्रॉम मिल्क. सो व्हेन इट्स डिराइव फ्रॉम मिल्क, चीज प्रोडक्शन के अंदर जो रह जाता है ऊपर लिक्विड, उसको वे कहते हैं. सो इट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, और उसी से फिर ये प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं जो वे प्रोटीन होते हैं. नाउ दे आर chock full of essential amino acids, जिनकी हमने बात करी थी प्रोटीन के एपिसोड के बारे में. It is rich in leucine, right? That is an essential amino acid. And again, a reminder, essential amino acid जो है वो needs to be taken, and it is not produced in the body. Right? So this leucine जो है amino acid, that triggers muscle protein synthesis. Okay, yeah. ठीक है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप अपनी प्रोटीन पाउडर कोई भी चूज करें, उसमें ल्यूसीन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आई मीन उस किस्म की बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे. ना इसके मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के कि जी मैंने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया तो मैं बल्की हो जाएंगे, या ये हो जाएगा, या वो आ जाएगा. Really आपकी एक 100 grams of chicken breast के अंदर around 25 to 30 grams of protein होती है, और एक प्रोटीन शेक के अंदर between 25 to 30 grams या कभी 21 to 25 grams of protein होता है. तो ये सिर्फ होता है इसलिए, ये सप्लीमेंट है to make sure कि आपके प्रोटीन टारगेट्स मीट हो सकें. You cannot replace a protein shake or whey protein from whole foods. तो पहला source of protein is your food, and which is हमारे जो major protein groups आपको पता है क्या है? Chicken है. Yeah, you have chicken, beef, and आपके पास और eggs हैं. I mean दाल, you know, etc. और जो चीजें आपके पास. Now women health के अंदर भी मैं इसको टच करना चाह रहा था कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, औरतें इसको समझती हैं कि इससे ये बल्कि हो जाएंगी. लेकिन जो वे प्रोटीन करता है, इट इज रियली टारगेटिंग लीन मसल. Right? And it also supports in recovery from training and from any strenuous exercise. Right. तो मैं लेता हूँ अपना प्रोटीन पाउडर आफ्टर वर्कआउट. लेकिन जब कभी प्रोटीन टारगेट अगर आपका कोई है स्पेसिफिक और वो नहीं मीट हो पा रहा है, and you need to supplement it, that's where it comes in. हमने अपनी प्रोटीन के एपिसोड में ये जिक्र किया था कि यूजुअली टू मेंटेन अ गुड प्रोटीन इनटेक, दैट इज 1 gram of protein per pound of body weight that you have. Exactly. So make sure you follow that. Yeah. Right? Yeah. So that was it for me on protein. Okay. ज़्यादा तो नहीं बोल दिया. No, that was quite good, quite informative. And so I will move on to the next one. I think this is the last one for this episode. वो है vitamin B12. और B vitamins की यूजुअली आप उसको एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी सब बहुत लेते हैं. B कॉम्प्लेक्स लेते हैं, या मल्टी वाइटामिन के अंदर आपकी डिफरेंट B फॉर्म्स होती हैं. But I'm going to specifically talk about B12 because, as I said in my previous episode, you need targeted supplements for your body needs. तो अगर B12 की ज़रूरत है तो वो आपको लेनी पड़ेगी. And sometimes आपके generally B vitamins जो हैं वो आपके जैसे स्ट्रेस से और इन चीज़ों से डिप्लीट होते हैं जल्दी. तो it might be a good idea कि आप उसको रिप्लेनिश करने के लिए you take a supplement जो कि सारे different B's उसके अंदर, vitamin B's उसके अंदर मौजूद हों. But let's just focus on B12 today. So B12 आपका जो है, you find this in foods of animal origin.
तो अगर आप जो है वीगन है या वेजिटेरियन है तो ये प्रॉब्लम बन जाती है and you need to you then supplement for need to that. supplement because you cannot find B12 in plant foods. जबकि plant foods are amazing, हर किस्म की चीज में कोई फायदा है, but B12 जो है नहीं वो है उसके नहीं है अंदर, available. unfortunately. So that is why mostly a balanced diet of different food groups is important for, like, you know, like a wholesome nutrition situation for you. But anyways, there is no shame, there's nothing. Agar aap hain vegetarian, you're vegan, it's a good idea to look into this and see that you might need to supplement with B12. However, it's not only vegetarians या vegans जिनको B12 का कोई कमी हो सकती है, बल्कि बहुत लोग हैं जो कि जिनको B12 की कमी हो सकती है. मैं भी B12 लेता हूँ. Actually, it's a complex जो सना ने recommend करा था मेरे लिए. And it really helps, but I cycle it. I don't take it forever. Yeah. तो अब B12 और different factors हो सकते हैं. या तो आपका जो B12 है वो आपके फूड में से एब्जॉर्ब ही नहीं होता है ना, या फिर आप कोई ऐसी मेडिकेशंस प्रॉबेबली लेते हैं जो उसको स्टॉप करती है. सो अगर कोई बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड यूज है मेडिकेशन का तो उससे भी हो सकता है कि आपका B12 जो है वो डिप्लीट हो रहा है. एंड इन जनरल बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस हो तो that is possible. However, there's also another thing, which is that there's a lack of intrinsic factor. अब ये क्या बला है intrinsic factor? I really wanted to talk about this. So अब इसके पीछे थोड़ा सा पीछे से चलना पड़ेगा कि B12 is basically bound to protein in your food. तो जब आप वो खाना खाते हैं, B12 is bound to that protein. Right. And for B12 to be absorbed in your body, it needs to be freed. उसको अलग होना है, उसको रिलीज होना है उस कंपाउंड में से जो वो जुड़ा हुआ है. So now this process starts in your mouth. आपके मुंह से शुरू हो जाता है क्योंकि digestion starts in your mouth. तो अगर आपका digestion सही नहीं है तो ये split नहीं होगा. हाँ, क्योंकि आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि your saliva helps. Obviously आपके माउथ से तो saliva helps. Then your HCl in your stomach, which is very important, वो हेल्प करता है इस प्रोसेस के लिए. एंड मूविंग ऑन, तो आपका जो सारी डाइजेशन की जो स्टेजेस हैं और डिफरेंट जो मूव करता है आपके पूरे पाथवे से, सो दिस हेल्प्स टू फ्री दिस B12 फ्रॉम दिस कॉम्पाउंड. एंड वंस इट इज फ्रीड, but then it combines with the intrinsic factor. और वो intrinsic factor basically है क्या? It's just a transport and a delivery protein. And it needs to be bound to B12 in order to be absorbed into your body. I think यहाँ एक layman मेरे लिए दो चीजें हैं. तो जब अगर तो ये B12 अलग नहीं होगा तो उसकी absorption नहीं हो सकती क्योंकि it needs a source to absorb. लेकिन अगर पहले वो split ही नहीं हुआ प्रोटीन के अंदर से तो वो नहीं हो सकता. And अगर वो intrinsic factor नहीं है available तो वो फिर भी नहीं हो, पर तो फैक्टर लैक कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी डाइजेशन शुरू से ही खराब है तो तब भी नहीं काम होगा. लेकिन अगर डाइजेशन शुरू से ठीक है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है जो कि गुड गट हेल्थ से आता है, तब भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. तो इट्स अ डबल वैमी. इसका मतलब है जो लोग च्यू नहीं करते ज्यादा खाना खाते हुए, वो शायद B12 की उनकी सेपरेशन नहीं हो रही. But it is like that, and that is why your gut health is so closely connected. Because body की digestion के साथ साथ absorption भी तो है ना, कि आपने चीज तो ले ली, ingest तो कर लिया, अब उस ingestion के बाद आपकी digestion कैसी हो रही है कि फिर वो इम्पैक्ट करेगी एब्जॉर्प्शन पे. और एब्जॉर्ब इस बेसिक चीज है ना, एब्जॉर्ब होगा तो ही आपके वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पहुंचेंगे जहां उनको जरूरत है. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड माइंड ब्लोन. and then if you feel अगर बहुत ज़्यादा fatigue, which I know is a very generic symptom, however it's important to really focus on it. और फिर सोचा जाए ना, don't brush off your fatigue if it's a constant and a very long term fatigue. उसको brush off ना करें कि ये तो ऐसे ही रहता है, हर वक्त यूं ही रहता है. I felt that as well, and that's why मैंने जब शुरू करी B complex तो I felt a lot better.
तो वो फटीग हो या आपको palpitations होती हो या आपका टेस्ट के ऊपर बड़ा लो काउंट आ रहा हो आपके RBCs और WBCs का, red blood cells, white blood cells का, so these are the things, then it's time to look into this. So आप वो, और ये सारी चीज़ें तभी आती हैं I guess when you're more aware. जब आप ये सुनते हैं, आपको ये बातें पता होती हैं, तो फिर then you're more aware of, अच्छा ये चीज़ हुई थी, मेरा ख्याल से टेस्ट कराना चाहिए, Yes. मुझे इसके बारे में अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए. Again, Let me you're the figure out. advocate of your own Exactly. health, right? So And- we need to be in the know. Exactly. So awareness is very important. That's the first step. पता होगा तो उसके बारे में आप कुछ कर सकते सकेंगे. हैं. So awareness and then advocate करना अपने लिए. That's again यही चीजें हैं, and that's how you're going to work on yourself and for your own optimal wellness. Absolutely. Yeah. So these ठीक है जी. are the ये थी हमारी supplements supplement आज की, list इस आज की. episode की, and as we said, this is a mini series, so we'll be coming with many more, bringing you all that awareness and education, and hope you liked the episode. And for those 2 people especially जिनको बहुत इंतजार था, उनकी वजह से ये somehow it has now become a mini series. So thank you and really it was because हमने last episode में बोला था कि we were brainstorming for the episode, and I was like नहीं, we need more because there's so much more out there. Exactly. And awareness, जो सना ने बोला, it's so important to have, because आप कभी बैठे होते हैं, लोग ऐसे ही generally बता देते हैं कि हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन you need to know about them. और थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है. Right. So thank you so much. Yeah, thank you very much for listening, for watching us, and we will see you in the next episode. Like and subscribe और दुआओं में याद रखें. See you then.